Ravi has joined. Good morning, sir. Morning, Biswajit. Not yet. He's not joined yet. I have just asked him to come online. Today, volume is okay, na? I am audible. I can see on the screen so many energetic, full of zeal young kids are very much eager to listen today's session. Welcome to all. Welcome to the promising champions of India of tomorrow. बच्चों कल का जो सेशन था that was delivered by Mr. Brett Clark, who is the Indian foreign expert of table tennis. And yesterday we had seen and we had witnessed and we had learned about the importance of service and receiving. The main emphasis he has given yesterday was that an average rally finishes at total knock of 3.6, means less than 4. So the importance of service and receive is very essential and it is very important in table tennis. Though, however, later in his talks, he has delivered that if the long rally is also going on, and what to do, what the footwork should be like that, these all things he has emphasized yesterday. The ice on the cake of yesterday's talk was the telephonic communication with the legend of Indian table tennis in this contemporary seasons, Mr. Sharat. और शरत ने हमको बताया था कि किस तरह से वो भी उनके गेम की जो मेन स्ट्रेटेजी है वो भी गेम को सर्विस को अर्लीस्ट पॉसिबल मैच्योर करने की होती है। आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनका नाम है मिस्टर रवि कनौजिया। रवि कनौजिया इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनएसईसी सेंटर कोलकाता में पोस्टेड हैं। आपने NSNIS से डिप्लोमा किया हुआ है टेबल टेनिस कोचिंग में and he has done bachelor's in physical education also from Chhatrapati Sahooji Maharaj University, Kanpur. Apart from that, he has qualified ITTF level 1 and level 2 coaches development programs as well. He is very energetic. He is associated in officiating also in the previous days, belongs to Uttar Pradesh. Today's topic which Mr. Ravi is going to deliver to all of us, आज जिस टॉपिक पे जिस कंटेंट पे रवि हमसे चर्चा करने जा रहे हैं, that is how and which technique should be taught to the players at different stages. हालांकि टाइटल का जो नोमेनक्लेचर है, टाइटल का जो नाम है, वो कुछ इस तरह से बताया गया है कि वो कोचेस को या पेरेंट्स को या मेंटर्स को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए या कौन सी टेक्निक्स उनको सिखानी चाहिए। बट वी आर लकी इनफ कि जो फर्स्ट रिसेप्टर्स हैं जिनको कि सिखाना है वो बच्चे स्वयं सामने बैठे हुए हैं। दे ऑल आर इन फ्रंट ऑफ अस वेरी मच, means I can witness that they are very much eager, very much curious to learn. So the house is yours, Mr. Ravi. The first stakeholders are directly in front of you. So please begin. Thank you so much, sir. Firstly, I would like to thank Sport Authority of India and Table Tennis Federation of India, uh, and special thanks to Rajendra Pradhania, sir, NSCC Kolkata, Salt Lake Sai.
मेरी प्रेजेंटेशन जो है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो जैसा कि आप स्क्रीन पे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। How and which technique should be taught to the player at different stages? इसका मतलब ये है कि आपको कौन कौन सी स्किल्स या टेक्निक्स हमें किस किस लेवल पे बच्चों को सिखानी चाहिए या बच्चे जो अभी यहाँ पे सेशन ले रहे हैं उन्हें सीखनी चाहिए। आप डिफरेंट एज ग्रुप के हो, आप डिफरेंट सेंटर्स में प्ले करते हो, आप हाँ अभी बिगनर स्टेज में हो या किस स्टेज में हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल्स में अगर हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर के बारे में अगर हम पहले घर से थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं तो हमें स्कूल में उसको समझने में बहुत आसानी होती है। तो दैट सिमिलर कि अगर हमें एकेडमीज या सेंटर्स में हम प्ले करने जा रहे हैं तो अगर हमें पहले से पता होगा कि आज हमें क्या सीखना है या हमारे कोच हमें क्या क्या सिखाने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है और आप बहुत अच्छी तरीके से उसको डेवलप कर पाओगे। तो इस पूरी सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एडवांस लेवल आप जितने अच्छे डेवलपमेंट की जितनी भी स्किल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके कीवर्ड्स आपको बताऊंगा, साथ में साथ दो शॉर्ट वीडियोस भी मैंने रख रखी हैं जिसके थ्रू आपको और अच्छा समझने में आसानी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके कीवर्ड्स क्या हैं, कि आपको उनमें कौन सी बारीकियों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप जैसे देख रहे हैं, मैंने सभी प्लेयर्स के जो डिफरेंट फेजेस आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, उनको 3 पार्टों में डिवाइड किया है और ये जनरली हर जगह पे देखने को मिलता है कि 3 फेजेस होते हैं। तो पहला जो बिगनर्स का स्टेज होता है, जो ग्रासरूट लेवल होता है, जब आप टेबल टेनिस खेलना शुरू करते हैं या आप किसी सेंटर में सीखने के लिए जाते हैं, तो आप एक ग्रासरूट प्लेयर होते हैं और उसमें एक एज कैटेगरी मैंने डिवाइड की है जिसमें 4 साल से 8 साल के बच्चे बिगिनर करते हैं। दूसरा, जब आप बिगनर्स लेवल से ऊपर उठते हैं, बिगनर्स के सारे स्किल को कंप्लीट करते हैं, उनमें अपना अच्छा कमांड डेवलपमेंट कर लेते हैं, तब आप इंटरमीडिएट स्टेज में जाते हैं जिसमें आपकी एज ग्रुप अप्रॉक्स 9 से 12 साल की हो जाती है। अच्छा, मैं कुछ ऐसे भी उदाहरण देना चाहता हूँ इंटरमीडिएट के सेशन में कि इंटरमीडिएट में मोस्ट ऑफ द स्किल्स जो टेबल टेनिस की हैं, अगर आप डेवलप कर लेते हैं, या मैं कोचेस को भी एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर 12 साल तक आप बच्चों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आप उन्हें सिखा पाएँ या बच्चे लर्न कर पाएँ, वो उतना ही एडवांटेज बन जाता है उनको एडवांस फेज में आने के लिए और साथ ही साथ उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो सेम अगर हम देखें तो हम जो थर्ड स्टेप में मूव कर रहे हैं, तब हम एडवांस स्टेज में हमारी जो एज ग्रुप है वो अप्रॉक्स 9 टू 12 ईयर्स की। इट इज डिपेंड अपॉन यू। अगर आप इतने अच्छी तरीके से लगन से अपने सेंटर्स में प्रॉपरली टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर रहे हैं, अपने कोचेस के द्वारा दी गई एडवाइस और स्किल्स को प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपनी 9 से 12 साल की एज में एडवांस स्टेज में भी आ सकते हैं, उससे अबव भी हो सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अबव होने के बाद एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोशिश आपको ये करनी है, जैसे आप अभी छोटे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को डेवलप कर लें। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, आप लोग अभी वर्ल्ड नोन फेस को जान रहे होंगे, काफ़ी नोन पर्सन है हरीमोतो। हरीमोतो अपने 14 साल की एज में ही उसने वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। उसने कई आरटीटीएफ प्रो टूर्स और वर्ल्ड की हाईएस्ट रैंकिंग उसने रीच की है। तो वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसने जो है अपनी सारी स्किल्स, अपने सारे टेक्निक्स को इंटरमीडिएट फेज में कंप्लीट कर लिया, तब वो 12 साल से 13 साल की उम्र में वो एडवांस स्टेज में मूव कर पाए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। टेबल टेनिस के जो मेन एस्पेक्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेबल टेनिस, या हम उन्हें कह सकते हैं स्तंभ, जो हमारे मेन पिलर्स होते हैं वो 3 होते हैं बेसिक। आपका सबसे पहला जैसे टेक्निक्स, जो आप खेलते समय यूज करते हैं। दूसरा होता है आपका टैक्टिकल, टैक्टिस या स्ट्रेटजी, जो आप ये सब। Ravi, can we translate it in English also? So let me do this now. Ravi sir is saying, यस Ravi sir has started his talk with saying that there is very important aspect in learning any skill or table tennis
strategy or technique is that once you are entering in the hall and you are going to learn some specific skill, you should have a preconceived idea of the thing which you, with the skill which you are going to learn. Because always, even in our schools also, when our teacher is asking us that tomorrow we will discuss on this topic or tomorrow we will teach you this lesson, so she or he asks you to have a glimpse, have a look of that content in your textbook, so that tomorrow when you are going to learn, when you are going to listen that lesson, listen the talk of the teacher, it will help you to assimilate, it will help you to learn the things, it will help you to adopt that things very efficiently. Second thing he has started talking about that there are three stages of learning, that is grassroots, then that is means three different stages are there. And if grassroots level you are considering yourself at the age of 4 to 8 years and you had learned so many fundamental basic skills in this phase, then when you will enter in intermediate phase you can advance, you can go for the betterment of those skills or some advanced skills. And after that, just like he has given an example of Harimoto, the Japanese, means you can say a Japanese table tennis prodigy. He has won so many titles, and presently he is only 14 years of age. So, guys, kids, if you have taken your grassroots age span little early, you can equip yourself with so many fundamental skills. Ravi, please. थैंक यू सर। तो जैसा कि मैं बता रहा था, टेक्निक, टैक्टिकल, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी और आपका लास्ट में आता है फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस। तो ये तीन हमारे बेसिक पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिनके द्वारा हम एक अच्छे लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर्स और अच्छी तरह से आप सभी स्किल्स को सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरी जो स्लाइड है वो टैक्टिकल पे है। तो सेम मैंने जितनी भी टेबल टेनिस स्किल्स हैं उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया है और ये एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का भी प्रोसेस है। जैसे आप किसी सेंटर में जाते हैं तो आप बिगिनर स्टेज में आपको कौन सी स्किल सीखनी है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ में एक कोचेस के लिए भी एक गाइडेंस है कि स्टेप बाय स्टेप उन्हें कौन कौन सी टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप सिखाना है बच्चों को। तो जब आप किसी भी सेंटर में जाते हैं, जब आप बिल्कुल नए होते हैं, आपको रैकेट नहीं पकड़ना आता या कुछ भी नहीं, आपने जस्ट इंटर किया है टेबल टेनिस फील्ड में, तो सबसे पहले आपको सीखनी होती है ग्रिप, हाउ टू होल्ड द रैकेट। उसमें आपकी 2 प्रकार की बेसिकली ग्रिप में सबसे ज़्यादा जो मशहूर ग्रिप्स हैं वो है शेक हैंड ग्रिप और पेन होल्ड ग्रिप। शेक हैंड ग्रिप के बारे में आप लोग जहाँ तक जो भी खेल रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है और इससे मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक परफॉर्म किया जा सकता है। पर पेन होल्ड ग्रिप अपनी ही एडवांटेज के साथ है। इंडिया में बहुत कम पेन होल्ड प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे बिहाफ पे या मैं अगर बोलूं तो अगर इंडिया में भी पेन होल्ड प्लेयर डेवलप हो तो ये हमारे एडवांस लेवल जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए एडवांटेज होगा कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ उन प्लेयर से फाइट करते हैं, उन प्लेयर से मैच खेलते हैं जो पेन होल्ड प्लेयर खेलते हैं, तो वो एक फेमिलियर होंगे क्योंकि वो अपने नेशनल्स में, अपने स्टेट्स में ऑलरेडी पेन होल्ड प्लेयर्स के साथ खेल चुके होंगे। पेन होल्ड प्लेयर की अपनी ही एक खासियत है कि उसमें स्पिन वेरिएंस काफ़ी अच्छी होती है, रिस्ट वर्क यूज़ काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपकी ग्रिप होती हैं। सेकंड जरूरी है। इसको लेते समय आपको बातों का जो ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके लेग पोजीशन होती है वो आपकी टेबल लाइन से डायगनली प्लेस की जाती है। आपके दोनों लेग्स के बीच में अप्रॉक्स शोल्डर विड्थ से थोड़ा वाइड गैप होना चाहिए। आपके नी सेमी फ्लेक्स बैंड होने चाहिए। आपकी बॉडी आगे की तरफ लीन होती है और आपके जो बॉडी वेट होते हैं वो टोज पे होते हैं। और आपको जब रेडी पोजीशन ले रहे हैं तो आपको दोनों हैंड अपने पैरेलल बॉडी की तरफ 90 डिग्री के एंगल की तरफ इस तरह से रखने चाहिए। दिस इज योर रेडी पोजीशन। तीसरा जो पॉइंट है वो जब आप एकेडमीज में जाते हैं, मैंने बहुत से सेंटर्स में देखा है या मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हमारे पास बच्चा आता है तो बहुत जल्दी हम उनको टेबल पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं।
तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उन्हें टेबल पे इंट्रोड्यूस स्किल करने से पहले हमें उनके अंदर इसके अंदर का इंटरेस्ट, एक काफ़ी अच्छे लेवल का आई हैंड कोऑर्डिनेशन और एक बॉल रैकेट सेंस डेवलप करना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ ड्रिल्स करनी होती हैं, जैसे टैपिंग द बॉल, रोलिंग द बॉल, वॉल टैपिंग, टैपिंग वॉली रैलीज, जो हम बच्चों को टैपिंग के साथ रैली रिले रेस करा सकते हैं, और साथ ही साथ बॉल बाउंसिंग रैलीज करा सकते हैं, रिलेज करा सकते हैं, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, साथ ही साथ रैकेट आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप। वो टेबल पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे बेसिक स्किल्स के लिए, तो वो एक तैयार मटेरियल के रूप में आपको मिलेंगे, और आप बच्चों आप भी तैयार रहोगे। और ये चीज जैसे अभी आप घर पे हो और आप लोग घर पे अपने इस चीजों को कर सकते हो, इससे आपका फोकस लेवल भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होगा, बॉल रैकेट सेंस भी डेवलप होगा। सर अतुल सर प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, are you getting my voice? यस सर, यस सर। As what Ravi sir has just communicated, that there are basically two types of grip. One is shaken grip and the other one is panhold grip. And these grips are named over as per the feel of the grip, just like we are shaking hand and we are gripping the racket, that is shaken grip. And if you are holding a pen, and this way if you are gripping the racket, that is a panel grip. That is very common thing. Second thing, what Ravi sir just told, that is ready position. I request all the kids who are listening, attending this session, whatever Ravi sir is saying, it is displayed in English on the slide as well. So whatever he is orally saying, whatever he has printed on the screen, you just try to assume what he's saying. Don't simply look the screen or the slide. You just in your subconscious state try to assume what he is saying. Like it is written here, legs position should be diagonal. Keep left leg little forward and from little forward from right leg. So you just assume when you that is as if you are standing on the table while you practice daily in your daily routine, which should be the stance, what should be the footwork. And if you will keep on assuming his words, what he is narrating or what is printed or published on the slide, then it will help you more to adapt the things which he is trying to teach. Please, Ravi sir. हाँ, तो इस स्टेज में आपको सबसे पहली बात मैं ये फोकस करना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा होगा। जब भी आप किसी सेंटर में खेल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कैजुअल होने के कारण, मस्ती फन में करने के कारण आप कभी कभी इन चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं, इनकी बारीकियों को ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, जिसकी वजह से आप आगे आने वाले स्ट्रोक्स को बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ बेसिक स्टेज में, ग्रासरूट स्टेज में हमने बेसिकली आपको ये 4 पॉइंट्स मतलब दो आपके स्किल्स को कवर किया है, जिसमें आपका स्टार्ट होता है काउंटर। काउंटर में आप काउंटर जो स्ट्रोक्स है इसको दोनों साइड से प्ले करते हो, फोरहैंड साइड से भी, बैकहैंड साइड से भी। इसके लिए आपकी रेडी पोजीशन बहुत ज़रूरी है। जब आप रेडी पोजीशन लेते हो तो आप टेबल के फोरहैंड साइड पे आके अपनी रेडी पोजीशन को लेते हो। सेम वही लेफ्ट लुक लिटिल फॉरवर्ड, राइट लुक, राइट लेग थोड़ा पीछे, उसको लेके आप बॉडी को बैंड करते हो, 90 डिग्री एंगल प्रोवाइड करते हो। फिर आपको अपने को स्किल सीखने से पहले 4 पॉइंट्स का बहुत ध्यान देना है, जिसमें मेन पॉइंट्स ये होते हैं। आपका सबसे पहला रेडी पोजीशन, बैक स्विंग फेस, कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड फॉलो थ्रू। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं किसी भी स्ट्रोक्स में, तो आपका स्ट्रोक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें कैसे होती हैं, और साथ में अभी मैं आपको वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा। तो जब आप रेडी पोजीशन फोरहैंड साइड पे ले लेते हैं, उसके बाद आप जब बॉल को हिट करने से पहले जो प्रिपरेशन लेते हैं उसे बोलते हैं बैक स्विंग फेस।
अगर हम फोरहैंड काउंटर खेलने जा रहे हैं तो हमारी रेडी पोजीशन के बाद जब हम हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं एल्बो से ओपन करते हुए, तो दिस इज योर बैक स्विंग। और बैक स्विंग फेज में आपको ध्यान रखना आपके रैकेट का एंगल अप्रॉक्स 45 डिग्री एंगल प्लेस होना चाहिए। जब आपका 45 डिग्री एंगल प्लेस हो जाना चाहिए, उसके बाद कॉन्टेक्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्टेक्ट पॉइंट जस्ट फ्रंट ऑफ योर लेफ्ट फुट के सामने आपको बॉल को हिट करना है। हिट करने के बाद जब हाफ का एक्शन कंप्लीट होता है तो लगभग अप्रॉक्स आपके फोरहेड साइड पे आता है, तो ये आपका एंड ऑफ द स्ट्रोक या फॉलो थ्रू कहा जाता है। सेम आपका बैकहैंड साइड में बैकहैंड काउंटर में आप अपनी रेडी पोजीशन को बैकहैंड साइड में प्लेस करोगे। सेम आप बैक स्विंग प्लेस लोगे, अपने रैकेट एंगल को 45 डिग्री एंगल अप्रॉक्स क्लोज करोगे और उसके बाद बॉल कांटेक्ट के बाद आप फॉलो थ्रू को परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ पुश की तरफ। फोरहैंड पुश में रेडी पोजीशन जब हम खेल रहे हैं किसी भी स्ट्रोक्स को, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के समय हम रेडी पोजीशन को स्पेसिफिकली उस टेबल के पार्ट में ले जाके प्लेस करते हैं। जैसे फोरहैंड साइड के लिए, फोरहैंड काउंटर के लिए हम फोरहैंड साइड पे आए थे, बैक फोरहैंड पुश के लिए हम फोरहैंड साइड पे आके अपने रैकेट को स्लाइडली ओपन करते हुए अप्रॉक्स 100 to 10 डिग्री ओपन कर और बॉल को कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉलो थ्रू में परफॉर्म करते हैं। इसको मैं अभी और भी क्लियर करूंगा अपनी वीडियो के द्वारा। तो अभी फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ बैकहैंड पुश की तरफ। बैकहैंड पुश में सेम आपकी रेडी पोजीशन जो है आपके बैकहैंड साइड ऑफ द टेबल होगी। आपका रैकेट एंगल ओपन स्लाइडली अप्रॉक्स 110 डिग्री की तरह, और आपको कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाद फॉलो थ्रू टूवर्ड्स द नेट की तरफ लेना है। थर्ड स्किल जो आपको बेसिक स्टेज में सीखनी है वो है आपकी सर्व और रिटर्न। जब हम आप छोटी एज में हो, 4 से 8 साल की एज में हो, तो उसके लिए सर्व आपको बेसिक ही सीखनी है। हाउ टू डू काउंटर सर्व, हाउ टू डू पुश सर्व, ताकि आप जो स्किल सीख रहे हो उसको अच्छी तरह से बॉल इन प्ले कर सको और उसके साथ साथ उनकी रैलीज प्ले करके उनमें अच्छा कंट्रोल और कमांड डेवलपमेंट कर सको। तो काउंटर सर्व जैसे आप काउंटर खेलते हो उसी तरह से आपको बॉल क्रॉस करके बॉल इन प्ले करने के लिए बॉल को काउंटर करने के बाद हल्का सा फॉरवर्ड की तरफ पुश करना है। दिस इज अ काउंटर सर्व। अब पुश सेम आपके बैक हैंड और फोरहैंड पुश की तरह बॉल को टॉस करने के बाद कॉन्टेक्ट करने के बाद फॉरवर्ड की तरफ पुश हैंड फॉलो थ्रू की तरफ ले जाना है। इस स्टेज में आपको जो मेन पॉइंट्स और ध्यान देने हैं वो ध्यान देने हैं फुट पर, या मैं कोचेस से बोलूँगा कि जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो आपको उनको फुटवर्क पे इंट्रोड्यूस करना है, जो कि आप जनरली करते ही हैं। तो बच्चों को भी ध्यान देना है। इस स्टेज में आपको बेसिकली 3 फुटवर्क को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेटरल मूवमेंट, साइड टू साइड फुटवर्क। दूसरा है इन आउट, जो शॉर्ट बॉल आप क्लोज टू द नेट आती है उसको प्ले करने के लिए जब आप वन लेग इनसाइड लेके जाते हैं और बॉल को पुश करते हैं, फिर आप कम बैक टू रेडी पोजीशन आते हैं, दैट इज इन आउट मूवमेंट। एंड थर्ड वन है पिरोविड मूवमेंट। पिरोविड मूवमेंट को स्विच मूवमेंट की तरह से भी जानता है, स्विच फुटवर्क की तरह से भी हम जानते हैं। जब हम बैकहैंड पे खेल रहे हैं, बैकहैंड साइड से हम बैकहैंड पे ही सेम मूव करके पिरोविड मूवमेंट लेके फोरहैंड को स्ट्रोक को प्ले करते हैं। दिस इज कॉल्ड पिरोविड मूवमेंट। नेक्स्ट आपका है मूवमेंट। इन स्ट्रोक्स में अच्छी कमांड लेने के लिए आपको इन सारे स्ट्रोक्स को मूवमेंट के साथ भी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे अगर आप काउंटर सीख गए हैं तो काउंटर को आपको सेम फोरहैंड से सेंटर से खेलना, फिर फोरहैंड सेंटर बैकहैंड से खेलना, तीनों जगह से खेलना। तो इसके लिए आपको 2 प्लेस मूवमेंट, 3 प्लेस मूवमेंट, स्विच मूवमेंट जो आपने फुटवर्क सीखा है उसी के अकॉर्डिंग इनको परफॉर्म करके इनमें अच्छा कंट्रोल डेवलपमेंट करना होता है। साथ ही साथ इस एज ग्रुप में आपको एक स्मॉल गेम प्ले भी सीखना है। कोचेस जो हैं वो आपको एक रूल्स सिखाएंगे टेबल टेनिस के और एक स्मॉल गेम प्ले भी सिखाएंगे जिसमें आप 5 पॉइंट्स के मैचेस खेलना सीख सकते हैं। साथ ही साथ एक सिंगल सेट 11 पॉइंट का सिंगल सेट खेल सकते हैं। और दिस इज द लास्ट ऑन दिस ग्रुप टॉपिक। तो इस ग्रुप का एक लास्ट टॉपिक जो मैंने अपनी तरफ से रखा है, जो मैंने पर्सनली फील किया है, वो है बेसिक एटिकेट्स। बेटी जो आपका बेसिक एटिकेट्स है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप बेसिक एटिकेट सीखोगे तो आप एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन प्लेयर के रूप में डेवलप होगे। और स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन इज द मस्ट थिंग।
अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप कैसे स्पोर्ट्स पर्सन दिखाई पड़ोगे, जब आप एक अच्छे डिसिप्लिन में रहोगे। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में आपकी पंक्चुअलिटी, टाइम टू टाइम सेंटर पे आना, जो कोचेज आपको एडवाइस कर रहे हैं उससे अच्छे से परफॉर्म करना, अपने सीनियर प्लेयर्स, अपने कोचेज, अपने सभी के साथ अच्छा बिहेव करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, उनकी बातें मानना। साथ ही साथ गुड एटिकेट्स में, एक अच्छे बेसिक एटिकेट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप सेंटर में आ रहे हो और आप एक अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो स्किल्स को सीखने में, तो आप उतना ही ज़्यादा टाइम लोगे इन स्किल को सीखने में, और हो सकता है आप अपनी स्किल्स के एक्शंस को भी सही तरह से डेवलप ना कर पाओ। तो दिस इज द बेसिक एटिकेट। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ वीडियो। रेडी पोजीशन, बैक फेस, कॉन्टैक्ट पॉइंट, फॉलो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बैक स्विंग फेस, कांटेक्ट पॉइंट, आपका रैकेट कांटेक्ट पॉइंट, देन आपका एक्शन फॉलो थ्रू, एंड ऑफ द स्ट्रोक्स, फोरहैंड काउंटर के लिए। सेम आपका बैक हैंड के लिए, बैक स्विंग फेस, सेम जब आपको बॉल को हिट कर रहे हैं तो आपका कांटेक्ट पॉइंट, आपका रैकेट 45 डिग्री एंगल में है, फॉलो थ्रू जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर हेड, आपके हेड के सामने फिनिश अप लेता है टूवर्ड्स द नेट। दिस इज योर बैक हैंड काउंटर। नाउ फोरहैंड पुश, सेम रेडी पोजीशन आप लेने के बाद सॉफ्ट प्ले करते हैं, बैक स्विंग आप रैकेट पीछे ले जाके बैक स्विंग करते हैं, फिर बॉल को कांटेक्ट करते हुए फिनिशिंग स्ट्रोक फॉलो थ्रू की तरफ डेवलप होता है। Ravi sir, यस सर। so kindly speak a bit louder. ओके सर, ओके। नाउ सेम यू कैन सी दैट बैक हैंड पुश में सेम आप बैक स्विंग, देन कांटेक्ट पॉइंट, देन फॉलो थ्रू। दिस इज द वीडियो ऑफ दीज स्किल जो मैंने अभी आपको बेसिक स्टेज में बताया है। Can you go with the previous two slides, Ravi? I can translate it in English. Yes, The previous yes. one, इससे भी पहले वाली. राइट, ये हो गई थी just next. ओके। Okay, what Ravi sir has just said that the importance of some fundamental skills one has to learn. इससे just पहले वाली slide पे जाएंगे रवि. जी सर। Counter. So, although we are having some questions related to this, that what one should learn first, is it counter return or is it push? But we'll go to you later asking these all things. So first thing which Ravi sir told us about, that is forehand counter and backhand counter. Then what the important things or important aspects to be considered in forehand counter is the angle of the racket, which has been just shown in the video as well. Maybe it is a forehand counter or a backhand counter. For the beginner level, the angle of the racket while it is having the contact with the ball should be 45 degree. बच्चों, it is very essential to learn that a very marginal deviation in the angle may distract the parabola of the ball. Sometimes you may miss the correct return as well. So try to learn, like if you are sitting here and watching the screen, you can use your arm in accuracy, that is it 45 degree angle, is it 45 degree angle. So sitting idle may sometimes help you in practicing the skill also. What Ravi sir is saying, even in sitting at the couch or the sofa, you can try imitating the things which has been shown in the video. Second thing is about push, what Ravi sir has just told, that posting the positioning of the racket angle, that is slightly open racket angle and approx 110 degree. Similarly in the backhand push also. Then serve and serve return. Yesterday also we had
learned and we had listened about this, the importance of serve and serve return, the counter serve and push serve. Then in this slide, lastly, it is footwork, side to side footwork, in and out footwork, and pivot movement. Next slide, please. During the movements or the complete body movement in accomplishing any return or service, whatever the skill you're executing, two place movement, three place movement, and switch movement. This is what Ravi sir has just narrated. And small gameplay of 5 points, gameplay of 11 points. Actually, this happens in the recapitulation of the session. Suppose you had learned a particular skill for whole day, that is for 40 minutes, 45 minutes on an hour of your training session. So in the end of the session, you can go with this recreational game, or you can say it as a lead up activity as well of the skill which you had learned that particular day. You can play a game of 5 points or 11 points, executing the same skill which you had learned on the same day. And lastly, the ethics, basic etiquettes, all has to remember, all have to follow, because this is our fundamental identity. Ravi sir, please. ओके, थैंक यू सर। अब इन स्किल्स को सीखने के बाद जब इनमें आप अच्छी तरह से कंट्रोल्स डेवलप कर लेते हैं, अब कंट्रोल्स का पता कैसे चलेगा आपको? जितनी ज़्यादा रैलीज आप मेक करते हो प्रैक्टिस में, या जितनी अच्छी तरह से आप स्ट्रोक को परफॉर्म करते हो, दिस इज़ योर कंट्रोल, दिस इज़ योर कमांड ऑन स्किल्स। तो आप मूव ऑन करते हो आप इंटरमीडिएट स्टेज में। इंटरमीडिएट स्टेज में जैसा कि मैंने आपको बताया था, 9 से 12 साल की उम्र के बच्चों को मैंने रखा हुआ है। इस स्टेज में आते आते आप इंटरमीडिएट स्टेज में आ सकते हो, और आप पहले की बेसिक स्किल को सीखने के बाद इसमें मूव ऑन कर सकते हो। इंटरमीडिएट स्टेज में मैंने जो स्किल्स बताई हैं, ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ स्किल्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्किल सीखने की कोशिश करनी है, उनमें अच्छी तरह से कमांड्स डेवलप करना है, ताकि आप 12 साल कंप्लीट होते होते आप एडवांस स्टेज में मूव ऑन कर जाओ। तो नाउ इसमें जो पहली स्किल्स है, जो पहली टेक्निक है, वो है ड्राइव। ड्राइव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप एक अच्छा स्ट्रोक परफॉर्म करने में अनेबल हो, लाइक बैक हैंड से, फोर हैंड से, तो आप बॉल को इन प्ले रखते हुए अपनी पोजीशन को अच्छी तरह से बना के नेक्स्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें जैसे हम फोरहैंड काउंटर खेलते हैं, उससे थोड़ा सा लॉन्गर एक्शन लेते हुए आपका बैक स्विंग थोड़ा सा और पीछे एल्बो से ओपन होते हुए, आपका जो बॉल पे कांटेक्ट पॉइंट के टाइम बॉल को स्लाइटली जस्ट कैरी करके टेबल पे रखना होता है, और एक्शन आपका कांटेक्ट पॉइंट के बाद सेम फॉलो थ्रू आपका फोरहेड पे। इट्स लुक लाइक अ सिमिलर टू द टॉप स्पिन, बट टॉप स्पिन में आप एक्सेलरेशन स्पिन करते हो बॉल को, इसमें आप जस्ट बॉल को कैरी करके टेबल पे रखते हो। लेकिन ये सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट और इसकी स्टेपिंग आपकी बिल्कुल सही है, तो आपको टॉप स्पिन सीखने में और उसमें अच्छी तरह से मास्टरी करने में बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको ड्राइव को बिल्कुल स्किप ना करें, इसे आप इंटरमीडिएट की पहली स्किल में हमेशा डेवलप करें, इसे सीखें। बैकहैंड ड्राइव, बैकहैंड में सेम आपका सेम पोजीशनिंग आप बैकहैंड से लोगे, इसमें थोड़ा सा टेबल से पीछे जाते हुए आपको अपने एक्शन को थोड़ा सा लंबा लेते हुए बैक स्विंग थोड़ा सा लंबा करके कांटेक्ट पॉइंट देन फॉलो थ्रू आपका फोरहेड पे, और बॉल को कैरी करते हुए टेबल पे रखने की कोशिश करेंगे। फिर इसको रैलीज डेवलप करेंगे 10, 20, 50 एज मच यू कैन। उसके बाद आप इसमें एक अच्छा कमांड और इस स्किल को डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्किल हमने, नेक्स्ट टेक्निक जो इसमें ली है, वो है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफेंसिव स्किल। डिफेंसिव स्किल है, इसमें आपके बेसिकली जो है दो तरह की ब्लॉकिंग होती है। सेम आप दोनों साइड से परफॉर्म करते हो, बैक हैंड साइड से, फोर हैंड साइड से। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। उसका होता है, पहला होता है आपकी पैसिव ब्लॉक और एक्टिव ब्लॉक। बहुत से स्टूडेंट्स जो है पैसिव ब्लॉक बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रोल होता है। पर आपको अगर इस स्किल्स के थ्रू सामने वाले प्लेयर को, अपोनेंट्स को डिफिकल्टी प्रोवाइड करनी है, या साथ ही साथ इस
स्किल से आपको पॉइंट्स अचीव करना है तो उसके लिए आपको एक्टिव ब्लॉक का जाना बहुत जरूरी होता है। पैसिव ब्लॉक क्या होता है? पैसिव ब्लॉक में हम जस्ट अपोनेंट की जो टॉप स्पिन है या ड्राइव है उसको यूटिलाइज करते हुए जस्ट बॉल को ब्लॉक करते हैं, अपने हैंड को ब्लॉक करते हुए रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक्टिव ब्लॉक में हम अपनी फोर्स को बॉल पे इंट्रोड्यूस करते हैं, अपनी फोर्स को बॉल पर देते हैं। जब सामने वाला टॉप स्पिन मार रहा हो या ड्राइव कर रहा हो तो हम उसको और भी फोर्स प्रोवाइड करते हुए ब्लॉकिंग एक्शन को थोड़ा सा फॉरवर्ड काउंटर के एक्शन में हल्का सा चलाते हुए रिस्ट यूज करते हुए बॉल को टेबल पे कीप करते हैं, अपनी फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये एक आपका पॉइंट भी गेन करने का स्ट्रोक बन सकता है। सेम आप इसको बैकहैंड से भी प्लेस कर सकते हैं, फोरहैंड से भी प्ले कर सकते हैं। ये भी सीखना आपको बहुत जरूरी है, इसके दोनों वेरिएशन। नेक्स्ट आपका आता है टॉप स्पिन। टॉप स्पिन जैसा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल या बहुत ज़्यादा यूज होने वाली स्किल्स है, ये मोस्ट ऑफ द चीज़ों में इम्प्लीमेंट हो जाती है, चाहे लॉन्ग सर्विस आ रही हो, चाहे आपकी काउंटर सर्विस आ रही हो, चाहे बिटवीन द गेम प्ले हो रहा हो या आपको अटैक इनिशिएटिव लेना हो तो आप प्ले करते हो। टॉप स्पिन भी सेम आपकी बैक हैंड साइड और फोर हैंड साइड दोनों से खेली जाती है। इसमें आपकी पोजिशनिंग का ध्यान देना होता है, जैसे आप काउंटर की पोजिशनिंग अपने फोर हैंड साइड पे आके लेते हो, उसके बाद आप काउंटर सर्व प्ले करने के बाद वन स्टेप पीछे होकर अपनी पोजीशन को थोड़ा और बैंडिंग में ले जाके अपने एक्शन को सेम फोरहैंड ड्राइव की तरह थोड़ा सा लॉन्गर लेते हुए, थोड़ा सा लंबा खींचते हुए, उसके बाद बॉल को मोर ऑफ द टॉप पे उसके बिहाइंड और टॉप की तरफ कांटेक्ट करने के बाद बॉल को स्पिन ब्रशिंग करते हुए अपने एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप टॉप स्पिन को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये देखना है कि आपको मोर ऑफ द अपनी ब्रशिंग फीलिंग की डेवलपमेंट करनी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज की। जैसे हम बिगनर स्टेज में थे तो हम मोर ऑफ द अपना सेंस और पेशेंस डेवलप कर रहे थे। इंटरमीडिएट स्टेज में आप सभी प्लेयर्स और खासकर कोचेस का भी ये रोल होना चाहिए कि बच्चों में फीलिंग्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। रैकेट और बॉल की फीलिंग जितनी ज़्यादा आपको फील डेवलपमेंट हो जाएगी, जितनी ज़्यादा आप फील डेवलपमेंट करोगे, उतनी ईजिली आप स्ट्रोक्स को सीखोगे और उतनी इफेक्टिवली आप स्ट्रोक को परफॉर्म कर पाओगे। इफ अगर आपको टॉप स्पिन की फीलिंग अच्छी है आपको अपने रैकेट पे, तो हमेशा आपके टॉप स्पिन बहुत ही हैवी स्पिन में और साथ ही अच्छी जगह पे प्लेस कर पाओगे। तो आपको फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। जब भी आप टॉप स्पिन सीख रहे हो, कोई भी स्ट्रोक इस स्टेज में सीख रहे हो, तो आपको फीलिंग्स बहुत डेवलप करनी है। सेम हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा बैक स्पिन और कट। बिगनर स्टेज में जैसे हम कि बैक हैंड पुश और फोरहैंड पुश सीखते हैं, इट इज जस्ट टू कीप बॉल ऑन द टेबल, बॉल को सीखना, और साथ ही साथ एक फर्स्ट स्टेप होता है टू बैक स्पिन को सीखने का। और बैक स्पिन बहुत यूजफुल स्ट्रोक है फॉर द रिसीविंग ऑफ सर्व, फॉर द प्रिवेंटिंग और अपोनेंट को रोकने के लिए भी कि वो अटैक ना कर पाए। तो इसमें बैक स्पिन और कट जो है वो होता है बॉल को बैक रोटेशन प्रोवाइड करना। सेम जब मैं बात कर रहा हूँ कि फीलिंग डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आप टॉप स्पिन में स्पिन का ब्रशिंग का फीलिंग डेवलपमेंट कर रहे हो, सेम आपको बैक हैंड पुश और बैक हैंड चॉप में भी, बैक हैंड कट में भी आपको फीलिंग्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जब आप रैकेट की ब्रशिंग, रैकेट पे अपनी बॉल की ब्रशिंग को अच्छी तरह से फील करोगे तो आपकी स्पिन बहुत अच्छी जाएगी, बहुत हैवी जाएगी, जो सामने वाले को डिफिकल्टी प्रोवाइड करती है। इसमें आप दो तरह से प्लेस कर सकते हो, शॉर्ट बैक स्पिन रिटर्न, लॉन्ग बैक स्पिन। इसकी जितनी ज़्यादा आप रैली अपने पार्टनर के साथ खेलते हो उतनी ज़्यादा इसकी कमांड बढ़ेगी। ये बोथ साइड से प्ले करना है आपको, बैक हैंड साइड, फोर हैंड साइड, दोनों तरफ से। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, आपको इस स्टेज में और एक अच्छी स्किल सीखने को मिलती है, एक और अच्छी स्किल सीखनी चाहिए, वो आती है आपकी फोर हैंड फ्लिक। फोर हैंड फ्लिक एंड बैक हैंड फ्लिक। ये अब टेबल टेनिस गेम इतना फास्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा टेक्निकली हो चुका है कि अब मोस्ट ऑफ द जो मेन प्लेयर हैं, बॉयज़ प्लेयर हैं, इवन गर्ल्स प्लेयर जो है हमारी हैं, वो सर्व को सिंपल पुश या कट रिटर्न में बिलीव नहीं करती हैं। ज़्यादातर वो उसको अटैक एज सून एज पॉसिबल पॉइंट गेन करने के लिए इस स्ट्रोक को परफॉर्म करते हैं। फोर हैंड फ्लिक आपका सेम फोर हैंड साइड, बैक हैंड साइड से यूज़ किया जाता है। इसके लिए परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रेडी पोजीशन को
आपने एज मैच में जैसे आप मैच में लेते हैं उस तरह से प्लेस करके हुए वन लेग मूवमेंट का यूज करके अपने राइट लेग को अंडर द टेबल, अगर आप राइटी हैं तो अंडर द टेबल राइट लेग ले जाएंगे, अगर आप लेफ्टी हैं तो अपना लेफ्ट फुट अंडर द टेबल ले जाके क्लोज टू द बॉल जाके अपने रैकेट एंगल को फोरहैंड की तरह 45 डिग्री एंगल प्लेस करके करते हुए बॉल को एज अ स्ट्रोक प्लेस करते हैं, बॉल को हिट करते हैं। और सेम फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोरहैंड कांटेक्ट के पॉइंट के बाद आपका फॉलो थ्रू आपके फोरहेड के सामने की तरफ फिनिश होगा। सेम आप बैकहैंड से, बैकहैंड में भी आपका, अगर आप राइटी है तो आपका राइट लेग, और अगर आप लेफ्टी है तो आपका लेफ्ट फुट वन लेग मूवमेंट लेते हुए अंदर द टेबल जाके बैकहैंड की शॉर्ट बॉल, शॉर्ट रिसीव, शॉर्ट सर्व, साइड और साइड स्पिन सर्व, लेटरल सर्व जो है उनको फ्लिक करने के लिए आप सेम क्लोज टू वन लेग मूवमेंट लेके अपने रिस्ट को यूज करते हुए कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड फॉलो थ्रू करके अपना एक अच्छा बैकहैंड फ्लिक परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इस स्टेज में आपको लूप सीखना भी बहुत जरूरी है, लॉब आपको सीखना बहुत जरूरी है। लॉब बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी बॉल को अच्छे से प्लेस करने में बहुत अच्छे नहीं हो पाए, आपसे बॉल हाइटेड चली गई, आपसे रिसीव हाइटेड चली गई, तो यू नो आपको पहले से पता होता है कि सामने वाला उस पर एक हार्ड हिट करने वाला है या एक अच्छा स्मैश हिट करने वाला है। तो अगर आपको लॉब करना आता है, आपको उस बॉल को पीछे से ब्लॉक करके बॉल कीपिंग करना आता है, तो आप उसी बॉल पे आप उस बॉल को गिव अप नहीं करते हो, आप पीछे से एक शॉर्ट रनिंग मूवमेंट लेते हुए पीछे सेंटर में रेडी पोजीशन बना के बॉल के लिए, नेक्स्ट बॉल के लिए रेडी होके उसको ब्लॉक करके और बॉल को टेबल पे एक हाई आर्च के साथ प्ले, इससे एक सामने वाले को भी डिफिकल्टी होती है उसको हिट करने में, और साथ ही साथ आप एक बेटर सिचुएशन में आते हो। इन बिटवीन आप अटैक भी बना सकते हो और मे भी आप लॉग में ही सामने वाले को डिफिकल्टी प्रोवाइड करके पॉइंट गेन कर सकते हो। फोरहैंड लॉब को प्लेस करने के लिए सेम आपकी पोजीशन ऑन सेंटर होनी चाहिए, टेबल से पीछे शॉर्ट रनिंग मूवमेंट लेते हुए आपको पीछे जाना है और सेंटर में लेनी है। आपका रैकेट एंगल मोर ओपन होना चाहिए और जो आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो थोड़ा डिसेंडिंग फेस में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे और डिसेंडिंग फेस में होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो एक्शन तो आपका जो बॉल है वो हाई आर्च में सामने वाले को प्रोवाइड हो। तो जितना ज़्यादा हाई आर्च रहता है सामने वाले को डिफिकल्टी बढ़ जाती है उसको जजमेंट करने में, साथ से साथ कॉन्टेक्ट पॉइंट प्लेस करने में। जब आप कॉन्टेक्ट करते हो उसके बाद जो आपका हैंड मूवमेंट है वो अपवर्ड की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। सेम आपका आप बैक हैंड से कर सकते हो, सेम आपको रनिंग मूवमेंट लेके सेंटर में पोजीशन लेनी है, आपको बैक हैंड साइड से अपने हैंड को लॉन्गर नीचे की तरफ ले जाते हुए डिसेंडिंग पेस में कॉन्टेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करना है और बॉल को कीप करना है एक हाई आर्च के साथ। नेक्स्ट जो स्किल, जो टेक्निक आपको इस एज ग्रुप में सीखनी है या कोचेस को सिखानी है वो है सर्व। सर्व बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्किल दैट कम टू द प्ले इन द गेम, है ना। तो सबसे पहले आपको सर्व में कौन कौन सी इस स्टेज में सर्विस सीखनी है या वेरिएशन सीखनी है। सबसे पहले आती है लेटरल सर्व इसमें, क्योंकि आप पहले जब पुश सर्व सीख चुके हो तो आपको लेटरल सर्व एक है। लेटरल सर्व का मतलब होता है साइड स्पिन सर्व, जो बेसिकली एक आपकी साइड टू साइड, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट स्पिन सर्व होती है। बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। सेम नेक्स्ट जो स्किल्स है इसमें सर्व है वो आपकी बैक स्पिन सर्व, देन टू बाउंड सर्व। टू बाउंड सर्व का बहुत इंपॉर्टेंट करती है सामने वाले को रोकने के लिए अटैक से और उसे कंफ्यूज करने के लिए। और जो बैक स्पिन सर्व है वो सामने वाले को बिल्कुल अटैक करने से रोकने के लिए है और अपना अटैक बनाने के लिए है। नेक्स्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्पिन सर्व, जैसे कि साइड स्पिन पर बैक स्पिन, ये इसकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है तो इस सेशन में मैं उसको कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका एक जनरल इंट्रो आप लोगों को दे रहा हूँ। और अगर आप इसको और अच्छी तरीके से देखना चाहते हो तो आप आजकल यूट्यूब इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न एनीथिंग, तो आप वहाँ पे देखिए बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स के वीडियोस हैं। मैंने भी कुछ कोशिश की है बच्चों को सिखाने के लिए, तो यू कैन सर्च देयर। और इस स्टेज में सर्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉसिंग ऑफ द बॉल।
जब आप बिगनर स्टेज में हो, बेसिक स्टेज में हो, तब आप सर्व को लो टॉस करके प्ले कर सकते हो, तो आप स्पिन भी कर सकते हो, एक अच्छी कर सकते हो। पर जब आप इस स्टेज में आते हो तो आपको हाई टॉस सर्व परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, और इसका एक अपना ही गुड एडवांटेज है। यू कैन सी चाइनीज प्लेयर या चाइनीज गर्ल्स प्लेयर या चाइनीज मेंस प्लेयर आप देखोगे या जापानीज देखोगे, दे आर यूजिंग सो मच हाई टॉस, बहुत ज़्यादा हाई बॉल टॉस करते हैं। उसका ये यूज होता है कि जब बॉल को आप हाई टॉस करते हो तो बॉल में एक अपना फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें एक अपनी स्पीड आती है, जिसका आप कांटेक्ट पॉइंट पे यूटिलाइज करके मोर स्पीड प्रोड्यूस करते हो, जिससे सामने वाले को डिफिकल्टी होती है। साथ ही साथ जब आप इतने लंबे टाइम के लिए बॉल को हवा में टॉस करते हो तो जो आपका अपोनेंट है वो भी थोड़ा सा बॉल को जज करने में डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि बॉल कब कांटेक्ट होने वाली है रैकेट से। तो इसका यूज करना बहुत जरूरी है। हमारे इंडियन प्लेयर्स में मैंने बहुत से प्लेयर्स को देखा है यूज करते हुए, खासकर स्पेशली मैं अगर गर्ल्स में नाम लूँ तो आप मोमा दास को देखते होंगे। मोमा दास बैकहैंड से जब सर्व करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई टॉस करती हैं, उसके बाद जब वो कांटेक्ट बोलती हैं बॉल को तो बॉल बहुत स्पीडी जाती है, जो कि इजिली जज नहीं हो पाती है अपोनेंट से। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। साथ ही साथ रिटर्न्स में ऑल्सो बहुत सी वेरिएशंस हैं, आपको इस समय वेरिएशन सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर एक आप अच्छा स्किल्स डेवलप कर रहे हो तो आपको पुश रिटर्न, शॉट क्लोज टू द नेट रखने के लिए, बॉल को सामने वाले को अटैक रोकने से लिए आपको बॉल को पुश करना है। जैसे आप फोरहेड बिगनर से स्टेज में आप पुश रिटर्न करते हो, सेम लाइक बैक स्पिन, आप सेम जैसे आप बैक स्पिन सीख रहे थे आपके स्ट्रोक्स में, आपको रिसीव करते हुए सर्व को शॉर्ट स्पिन हैवी स्पिन रिटर्न देना है ताकि सामने वाला अटैक प्रोड्यूस ना कर पाए। इसको आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हो। सेम आप बैकहैंड फ्लिक और फोरहैंड फ्लिक का सर्व रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो, जो आपको एक अटैकिंग पोजीशन और एक बहुत अच्छी पॉइंट गेनिंग पोजीशन में ला सकता है। नेक्स्ट आपका इस स्टेज में जो है फुटवर्क जो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो आपने पहले स्टेज में आपने बिगनर स्टेज में फुटवर्क सीखे हैं उनका यूज करना ही करना है। साथ ही साथ इसमें कुछ और एडवांस जो है आ जाते हैं फुटवर्क। पिलोविड आपने जैसा कि पहले बिगनर स्टेज में सीखा है तो उसका मोस्ट यूज करना आपको शुरू करना है ड्रिल्स के साथ, स्किल्स के साथ। इन आउट मूवमेंट को जैसे आपने फोरहैंड फ्लिक्स सीखा, फोरहैंड शॉट पुश सीखा, उसमें यूज करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस लेग मूवमेंट। क्रॉस लेग मूवमेंट को मैं ब्रीफ करता हूँ। क्रॉस लेग मूवमेंट इज वेरी यूजफुल मूवमेंट। ये उन स्ट्रोक्स उन बॉल्स पर खेलने के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फोरहैंड या एक्सट्रीम बैकहैंड पर जाती है, जिनको आप इजिली शॉर्ट मूवमेंट्स के द्वारा रीच नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आप क्रॉस लेग मूवमेंट यूज करते हो। क्रॉस लेग मूवमेंट आपको दोनों तरह से परफॉर्म किया जाता है। जब आप जैसे सपोज दैट आप फोरहैंड पे यूज करने के लिए जा रहे हो तो आपका लेफ्ट फुट आपके राइट फुट के फॉरवर्ड आता है, फिर उसके बाद आपका राइट फुट आपके थोड़ा सा वाइडर फोरहेड पे जाते हुए, फिर आपको स्ट्रोक को परफॉर्म करने के बाद जब आप बैक स्विंग में आते हो तो आपका आगे दोनों रिवर्स परफॉर्म करते हैं। आपका राइट फुट आपके लेफ्ट फुट के सामने आते हुए, फिर आपका लेफ्ट फुट आपके राइट लेफ्ट साइड में बैक हैंड साइड पे आते हुए आपकी अगेन रेडी पोजिशन बनाता है, देन अगेन यू प्ले बैक हैंड साइड। तो आप इसको सेम फोरहैंड पे एक्सट्रीम बॉल, बैकहैंड पे एक्सट्रीम बॉल, मल्टी बॉल के साथ या प्रैक्टिस पार्टनर के साथ परफॉर्म करते हुए आप इस स्ट्रोक इस मूवमेंट को सीख सकते हो और यूज कर सकते हो। सेम जैसा कि मैंने इसमें आपको लॉब बताया है, तो लॉब और स्पेशली जो डिफेंसर प्लेयर होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल मूवमेंट होता है रनिंग फॉरवर्ड एंड रनिंग बैकवर्ड, स्मॉल रनिंग फॉरवर्ड एंड स्मॉल रनिंग बैकवर्ड मूवमेंट। जब आप आगे की बॉल प्लेस कर रहे हो, सपोज दैट आप डिफेंसर प्लेयर हो, आपने अपोनेंट ने आपको शॉर्ट बॉल दी है, सडनली उसने शॉर्ट बॉल आपने रिसीव करी और अपोनेंट ने आपने हैवी टॉप स्पिन प्ले किया, जो इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा पीछे टेबल पर जाता है, तो आपको थोड़ा सा रनिंग शॉर्ट रनिंग मूवमेंट करते हुए पीछे रेडी पोजिशन लेते हुए फिर आपको अपना बैक स्विंग डिफेंसिव स्ट्रोक में बैक स्विंग फेज लेते हुए कॉन्टेक्ट करके बॉल को क्रीपिंग करना होता है। अगर आप ये मूवमेंट जानते हो, इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बहुत ईजी होगा डिफेंसिव स्ट्रोक या डिफेंसिव स्ट्रोक की सारी स्किल को सीखने में डिफेंसिव प्लेयर की। साथ ही साथ ये लॉब में भी बहुत यूज होता है। जैसे आपने
एक लूज रिटर्न रख दिया, एक हाइटेड रिटर्न रख दिया और अपोनेंट ने उसको स्मैश से फिनिश करना चाहा, तो आप उसको कैसे रिटर्न कर पाओगे? अगर आपको ये रनिंग मूवमेंट आता है तो आप रन करके पीछे रेडी पोजीशन लोगे, उसके बाद आप इजीली इस स्ट्रोक को परफॉर्म कर पाओगे, बॉल को कीप कर पाओगे। और इस कुछ पॉइंट्स और हैं जो, जैसा कि मूवमेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या क्या मूवमेंट प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ इसके 2 प्लेस, 3 प्लेस, कॉम्बिनेशन ऑफ बैकहैंड, फोरहैंड, जितनी भी स्किल्स आपने सीखी है उनके साथ आपको इन चीज़ों को कॉम्बिनेट करना है, मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है। फिर रेगुलरली अपने ट्रेनिंग सेशन में कोचेस अपने ट्रेनिंग सेशन में ड्रिल्स को इंट्रोड्यूस करें, बच्चों को सर्व के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स को, टेक्निक्स को दें और उनको एक डिफिकल्टी प्रोवाइड करें। ड्रिल्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं ये करूँगा कि ड्रिल्स बेसिकली 2 तरह की होती हैं, एक रेगुलर ड्रिल होती है और एक इर्रेगुलर ड्रिल होती है। रेगुलर ड्रिल क्या होती है? रेगुलर ड्रिल वो ड्रिल्स होती हैं जिनमें आपको सारी बॉल्स पता होती है, जिसमें आपको आपके टीचर, आपके कोच आपको बताते हैं कि बेटा आपको सर्व करनी है, सर्व करने के बाद पहली बॉल आपकी यहाँ पर आएगी, दूसरी बॉल आपकी बैकहैंड पे आएगी, तीसरी बॉल यहाँ आएगी। तो दिस इज द रेगुलर ड्रिल, जो आपको पहले से पता होती है बॉल कहाँ आने वाली है। इर्रेगुलर ड्रिल में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स ना बताएं, पता रहे प्लेयर्स को या आपको ना हो। रेगुलर इर्रेगुलर में आपको 1 और 2 बॉल्स पता होती है कि 1 और 2 बॉल्स कहाँ पे आ रही है, उसके बाद की बॉल्स अननोन होती है कि कहीं भी आ सकती है, तो यू हैव टू जस्ट रेडी एंड प्ले द मोर ड्रिल्स इन दिस। दिस इज द रेगुलर एंड इर्रेगुलर ड्रिल। नेक्स्ट सेम आपको मैचेस खेलना सीखना है और कोचेस आपको होल ऑफ द रूल्स आपको बताएंगे कि मैचेस के रूल्स क्या होते हैं, क्या कैसे खेलना है, सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ 3 मैचेस, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 7 के मैचेस खेलने हैं। एवरी सैटरडे वीकली लीग मैचेस प्ले करना है अपने मैच टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए, अपने गेम प्ले को बढ़ाने के लिए। इंटर एकेडमी मैचेस खेलना है, अपने आसपास अपने फ्रेंडली एकेडमीज में जाके मैचेस खेलना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद जो मेन आता है आपका, जहाँ पे आप जान सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, आप कितनी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीख रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका मैच पॉइंट होता है, जब आप मैच में इन चीज़ों को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। लास्ट इसमें जो है मैंने सेम फिर से गुड एटिकेट्स रखा है, स्पोर्ट्समैनशिप रखा है, डिसिप्लिन रखा है और बिहेवियर ऑफ प्लेयर रखा है, एंगर मैनेजमेंट रखा है। तो स्पोर्ट्समैनशिप होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैच खेल रहे हैं तो अपने अपोनेंट को आप उनसे शेक हैंड करते हैं, उनको अच्छे तरह से बिहेव करते हैं। मैच के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, अपने प्रैक्टिस हॉल के दौरान एक डिसिप्लिन प्लेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सभी प्रैक्टिस पार्टनर, अपोनेंट और अपने कोचेस के प्रति एक अच्छा बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। और जो इसमें लास्ट पॉइंट है, एंगर मैनेजमेंट। इस स्टेज में आते हुए सभी बच्चों को, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंगर हो जाते हैं कि वो स्किल नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं और या मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये फोकस बहुत रखना है कि ये एक एग्रेसिव स्पोर्ट्स नहीं है। हमारा जो गेम है वो एक एग्रेसिव स्पोर्ट्स नहीं है। तो हमें अपना सेम, अपने जो एंगर है, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है हमेशा। अगर आप इसको कंट्रोल करते हो तो एक आप बहुत ही अच्छे प्लेयर के रूप में आगे उभर के आने वाले हो। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर अतुल सर थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में ब्रीफ कर दे तो। Actually, everything was clearly written in the slides, so I don't think that it is really essential to translate each and everything. Actually, we are also heading towards the curtaining of the session, and we are having some questions. Okay, sir. Just hold on, let me have the questions. Same time, I'll request Biswajit to kindly Parekh, because they are also the program moderators, so they can also assist and help us in solving these queries. The first question I had received here is that if a player's basics are not good at the age of 10 to 14 years, can he be the good player in coming years, and if so, then how?
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हम इस चीज़ को तभी देख सकते हैं जब बच्चे को बिगनर स्टेज में एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई है, थोड़ा लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, या बच्चा जो है या प्लेयर जो है हमारे पास रेगुलरली नहीं आ रहा है, या बहुत ज़्यादा सेशन मिस कर रहा है, या सेशन खेलते समय फोकस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तभी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चे की खुद से सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बच्चा सच में वो चीज़ें पाना चाहता है, एक अच्छे लेवल का प्लेयर बनना चाहता है, तो उसको खुद को अपने आप को दिखाना होगा। फिर उसके बाद अगर कोच उसमें ऐसी चीज़ें फील कर रहा है, ऐसी चीज़ें देख रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन और लंबा ट्रेनिंग सेशन खिला के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को डेवलप करा के हम कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे को कंपटीशन फेज में भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराएं उनको, और साथ ही साथ उनको जितनी ज़्यादा हो सके स्किल्स को टीच करें थ्रू द मल्टी बॉल, थ्रू द मोनो बॉल, और सेल्फ प्रैक्टिस, खुद खड़े होकर उसके साथ स्टैंड करके उसको एक अच्छा अपोनेंट प्रोवाइड करके हम उसको एक अच्छे प्लेयर के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। Can I ask Brad to add something more in these things? Good morning, everyone. I think if your basics are not good by the age of 14, something is a little bit wrong. But if you get a good coach who can teach you the right technique and you have time to practice every day, then you can still become a good player. It's no problem. But two important things. One, you need a good coach to teach you the right technique. And number two, you must practice a lot to catch up and make sure that you learn the shot properly, and then you can progress and become a strong player after that. Thank you, Brett. And I'll request Suman ma'am to kindly sum up this query. For the beginners. Yes. Suman ma'am, can you please sum up this query? Yes. Ravi, it is a very interactive and good session for the beginners. It is good. But I want to know, if a child is coming to you, एक बच्चा आपके पास आता है शुरू में, बिगनर बच्चा, और आप उसे टेबल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, then how you teach? Like first stroke, how you choose that what do you want to teach, whether first backhand push or forehand counter? How you decide that what do you want to introduce a child first? मैम, इसमें हमने देखा है काफ़ी सेंटर्स में, या हमने पर्सनली भी फील किया है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चे के ऊपर भी थोड़ा सा ये चीज़ डिपेंड करता है। सपोज दैट जब हम उसको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टैपिंग और रोलिंग ऑन द फ्लोर, बॉल को रोलिंग करना, ये चीज़ें तब देख रहे हैं, तो उसमें हमें बच्चे को देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि उसे पर्सनली क्या लाइक है। लाइक उसे ज़्यादा फोरहैंड पुश या बैकहैंड पुश में मज़ा आ रहा है, वो अच्छी तरह से उस चीज़ को कर रहा है, या वॉल टैपिंग में जब वो वॉल से रिबाउंड खेलता है तो वो ज़्यादा से अच्छे से परफॉर्म करता है, तो उसके बिहाफ पे हम उसको प्रेफर करते हैं कि हम उसे पहले फोरहैंड काउंटर प्रोड्यूस करें, या काउंटर टीच करें, या पुश बैकहैंड पुश या फोरहैंड उसको इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि जब वो इन चीज़ों को पहले अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जब वो टेबल पे इंट्रोड्यूस की जाएगी, चाहे फोरहैंड काउंटर है या बैकहैंड पुश या फोरहैंड पुश है, तो वो बहुत ही जल्दी ग्रैब कर लेगा और बहुत ही इजीली उसको सीख लेगा, तो उसका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है स्टार्टिंग और इनिशियली स्टेज में। लेकिन कुछ कोचेज ऐसा भी प्रेफर करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बच्चों को काउंटर से इंट्रोड्यूस करते हैं, पुश बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन कोचेज ऑल्सो कि वो उन्हें क्या पसंद है, वो कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसमें कोई भी चीज़ रॉन्ग और राइट नहीं है कि जो है हम पहले पुश ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करें या काउंटर ही इंट्रोड्यूस करें। Ravi, according to my opinion, I feel after a long service of 28 years, I feel that it depends on the child behavior. If a child is more attacking and defensive, like soft child, if a girl or boy is very soft, then we have to decide that we have to make him defensive. Right. And if it is a total responsibility of a coach, Right. because it is a question of a career of a Right. child, we are making a player.
So when a child is come, you take your time. All of the coaches, it is my request, please take a time to choose, say, see the mental status of a child, whether he is more aggressive, more defensive, more attacking, and then teach the strokes. It is totally our responsibility that we have to make a defensive player, and we have to make everyone cannot be a defensive player, everyone cannot be attacking player. So nice session, it is a good session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Atul, Dr. Atul, Brett, do you want to say something on this, that how we choose whether we have to make defensive or whether we make attacking Yes. player? Sure, ma'am. Sure. Yeah, I think what you said made a lot of sense. If the player is very aggressive when they come to the table, yes, they can be an attacking player. But if the player is more passive and they have a more reserved personality and they don't like to make mistakes, then you can make them defensive. So, and some players are in the middle, like Satyan. He's in the middle. He's attacking, but he also is counter-attacking as well. So some players, they like to play counter-attack like Satyan. And this is quite common in India, that players are very good at blocking and then making a counter-attack. So this style tends to suit Indian players to be consistent, but also make a lot of counter-attacking. So this is something you can think about. But I agree with you, ma'am. If the player is very passive, then you can make them defensive or even use phantom or anti. But if they're very aggressive and they want to kill everything, then you should embrace this and make sure that they learn how to attack correctly. Thank you. Thank you, you, Brett. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Brett. So the next query coming to us is, what is that two-way movement or three-way movement? Sir? Ravi, you just talked about two-step and three-place movement, two-place movement and three-place movement. Can you elaborate a little more about that? Or is it the synonymous of some other skill name? यस सर, एक्चुअली जब हम टेबल टेनिस में कोई भी स्किल परफॉर्म करते हैं, लाइक फोरहैंड से काउंटर या टॉप स्पिन, तो हम कभी भी किसी बॉल को मैच सिचुएशन में किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पर नहीं पाते. कभी वो सेंटर में भी आ सकती है, कभी आपके फोरहैंड साइड में भी आ सकती है, कभी आपको बैकहैंड साइड में आ सकती है. तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टाइम आपको, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको वो डिफरेंस पॉइंट पे भी प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट होता है. तो इसीलिए सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं फोरहैंड टॉस स्पिन, तो हम वन प्लेस फोरहैंड टॉस स्पिन अपने फोरहैंड टू फोरहैंड प्लेस प्ले करते हैं, उसमें मास्टरी करते हैं. सेम उसके साथ हम कॉम्बिनेशन करते हैं फोरहैंड प्लस सेंटर टू प्लेस मूवमेंट के साथ, टू प्लेस आपकी टॉप स्पिन प्लेसमेंट के साथ आप प्ले करते हो. सेम इसको आप थ्री प्लेस भी कर सकते हो, बैक हैंड सेंटर फोरहैंड. This is all about the two place, three place movement. So, Mr. Brett, can you want to contribute something else? Sorry, I'm not sure about the topic. Too much Hindi, I cannot understand. Yeah. Brett, they are talking about one place and two place when we start two place counter sequence of one and two place, center and forehand center, center forehand. Okay. So he has explained in Hindi that first we have to teach them on one place counter, Yes. standing on one place, and Yes. then 1 2, and then 1 2 3. These are the sequence. Right. So you Okay. please explain. Yeah. Yeah, I mean, you should start with one place to teach the basics. When the player is at completely grassroots and very basic level, you want to only play one place. But when you feel that the player is ready and the shot is stable, then you can add two places after that. And when you feel that they're good at that, you can add more places and change the routine as well. You know, after this, it can become random. If the player has good footwork and they're able to play one place, two place, or three place, then you can make more random. So it depends on the level of the player. And when they're ready to make the move for more positions.
Okay, right. Thank you. So with this, we are continuing today's session with little note that there is a terminology in English that is known as transformation. The basic difference, fundamental difference between two words, that is hear and listen. Hear and listen is two different things. Whatever sound coming to your ears is your hearing. And if that sound you are utilizing for your day-to-day life, for your improvement of your skill, it means you had learned. And whatever has been learned, if you had transformed it into your game, into your victory, into how to overcome the losses, the defeats, it means you are genuinely a smart player. So dear kids, doesn't matter. Just there was a question that someone has started playing early and then he had stopped and now he is in 10th standard or 11th standard and now he wants to continue. There is no problem at all. At any age, one can start playing game. One can resume playing game. So with this note, we are finishing today's session. We are thankful to Ma'am Suman Parekh, thankful to Mr. Brett Clark, and of course, today's keynote speaker, Mr. Ravi. Ravi, you had given a beautiful, you had delivered your talk in a very beautiful manner. Most of the receptors, most of the aspirants attended your session today will definitely have some good feel what you taught us. Tomorrow's session, again, we'll be resuming at 10 o'clock. Tomorrow's speaker will be Mr. Chakravarti. He's also an IS coach. So till then, have a good day. Once again, thanks to all of you. Thank you, Atul. Thank you, Atul. Thank you, Brett. Ravi, thank you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, sir. Thank you, Ravi sir. Thank you, Atul sir. Thank you, Suman ma'am and Brett sir, for this wonderful session. I would request all the participants also that a link has been shared in the chat box. You can see a link is being shared in the chat box throughout the session. It is a link for registration for all those candidates who have registered already, so they do not need to register again. For all those who are yet to register, please see that a link is being shared in the chat box. I'll share it once again right now. Can you display tomorrow's slide, Mr. Vijay? Is it possible? Share it, user. You can share it to the WhatsApp groups. So another link has been sent in the chat box for everyone's reference. You can just click on that link. For those who have already registered, you need not register again. But those who are yet to register, kindly please go to the link, click on that link and register yourself. For any kind of information regarding these sessions, for any kind of further information about the exams or anything, we'll always track back to your contacts and give you the relevant information. So for that, you need to register yourself through that link. Thank you for today's session and have a great day ahead.